So hi, good evening. So now we are going to discuss in this particular video about some prescriptions. Okay, so I'm just telling you about all the drugs and the particular question which are like important and can come. So in this first, suppose in our times we have to make this kind of alkali mixture. Okay, so we have to all the ingredients were given and then we have to set key, okay, go and make the alkali mixture. So in alkali mixture, okay, sodium bicarbonate we took, sodium bicarbonate, okay, then potassium citrate, okay, then we add water, okay, and from this a particular amount, a particular ratio we mix and we make the alkali mixture. लेकिन अभी क्या है ना कि the whole new the question pattern, they are just asking you to, okay, prescribe and communicate to a patient which has got a particular disease. Okay, you have to just write the name of the drug. So apart from what you have in your practical note copy, okay, I think this particular video will help you to get all the other important questions which can come in the practical exams as a prescription. Okay, so in prescription and communicate, it's not necessary ki only one will be given, it may be given 1 and 2. Okay, so 5 marks each. Okay, another question can become that prescription auditing. In prescription auditing, which you have to see that what are the errors in the prescription. Okay, again, in all prescription you have to know the parts of prescription. Okay, suppose there is a spotter, you have seen in the spotter, suppose these are the parts of prescription and these are named A, B and C and D. So they will be asked identify C. Okay, so suppose this is the RX, this is the main part, right? So this is identify the which part of the prescription is given below. Okay, so I'm just writing the all the important part, the inscription part. So here is the RX. Okay, so suppose the question is given and it's asked that write an antiseptic eye drop, like make write all the drugs or write one drug which can be used in the antiseptic eye drop. Okay, so here the drug is a sulfa drug. Okay, sulfacetamide sodium eye drop. Okay, so it's 10% and 2 drops to be instilled in each eye thrice daily. This 20 ml is the this will be infused in the 20 ml water, right? 20 ml water, and this 20 ml is the particular mixture, and now 2 drops will be given in each eye for 3 times. Okay, so the next part of the video I will be rushing down with the question which can become and what we are supposed, like you are supposed to write and we are expecting you to write in the particular questions. Okay, so antiseptic eye drop, if you'll ask, then sulfacetamide sodium eye drop, 2 drops to be instilled in each eye thrice daily. So eye drop for a wide angle glaucoma, we expect you to write timolol maleate 50 milligram, 2 drops to be instilled eyes twice daily. Okay, suppose in the exam you forget 50 milligram, you forget the dose, at least write the correct drug, or if you write the drug you have to defend why you are using in the wide angle glaucoma. Okay, so it's very important. So you will be asked the difference between wide angle glaucoma and narrow angle glaucoma. Okay, so the network of canal of Schlemm, everything you should remember when you are using it, right? Also in the wide angle glaucoma you can use pilocarpine. You can use pilocarpine with sodium chloride, but at least I'll say just remember one. Okay, what will be there in your exam, so you have to just remember only one. Okay, not more than that. Now mydriatic and cycloplegic drop.
ठीक है. नाउ द आंसर इज क्लियर कट, होमाट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड 400 milligram again in 20 ml. NaCl 112 gram will be added and the whole mixture will be dissolved in a 20 ml sachet. Okay, means 20 ml tube. Now this 2 drops in each drop, कितना ml रहता कोई नहीं पूछेगा, but 2 drops in each eye at 10-minute interval 1 hour before dark room examination. So again, what is the role of mediatric drop? What is the role of cycloplegic drop? Again, refractory eye testing. Refractory eye testing. Right? So for adult, we use homatropin hydrobromide, and for children, we use atropine. We use atropine because their muscles are very strong and they will not relax. Okay, so 2 drops in each eye at 10-minute interval 10-minute interval 1 hour before the dark room examination for refractive errors. Okay, so we give the eye drop to both eyes, and then we look for the proper dilatation of the pupil, and then we go through the retina and all. Okay, so this is the mediatric and cycloplegic drop. चलो अब इजी चीज़ स्टार्ट होगा. ठीक है, तो आई विल बी वेरी फास्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन योर 6 minutes. ओके, सो ड्यूडनल अल्सर. ड्यूडनल अल्सर हो रहा है, एसिड को कम करना है. रैनिटिडिन, सिंपल रैनिटिडिन रैनटैक के नाम से आता है. ये क्या है? H2 ब्लॉकर, राइट. मतलब ये सब तो तुम लोग जानते हो, बट यू हैव टू राइट क्या लिखना है वहाँ पे. रैनिटिडिन टैबलेट 300 milligram, 1 tablet टू बी टेकन एट बेड टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 weeks. तो रैनिटिडिन जो H2 ब्लॉकर होता है उसको हम लोग बेड टाइम में देते हैं या फिर शाम को देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 weeks. जबकि अगर वो PPI हो जाएगा, प्रोटॉन पंप इनिबिटर हो जाएगा, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये जो होता है एम्प्टी स्टमक में हम लोग सुबह में देते हैं. ठीक है, तो अगर आप रैनिटिडिन लिख रहे हो तो आपको लिखना होगा कि आपको बेड टाइम में देना है ना, शाम को देना है. ये ड्यूडनल अल्सर का हो गया. इंटेस्टिनल एंटीस्पाज्मोडिक, मतलब पेट दर्द को बचाने के लिए, राइट. डाइसाइक्लोमिन, ये तो आप लोग जानते हैं. तो ये 10 milligram का आता है. 1 tablet TDS बिफोर मील. ठीक है, कभी कभी क्या होता है बिफोर मील नहीं, मील के साथ भी लोग ले लेते हैं, या फिर एक बिस्किट खा के भी बोलते खा लो. ठीक है, कुछ खाए नहीं, खाली पेट में पेट दर्द कर रहा है, तो ये डाइसाइक्लोमिन विल बी हेल्पफुल. अगेन, डू नॉट राइट एनी कंपनी नेम, ब्रांड नेम नहीं लिखना है. ठीक है, ब्रांड नेम नहीं लिखना है. हम देखते हैं कभी कभी कोई लिख देता मेफ्टल्सपास, तो ये गलत है, आपको 0 मिलेगा. क्यों? बिकॉज आप किसी कंपनी का ब्रांड नेम आप लिख दिए. वो नहीं, आपको इंग्रेडिएंट लिखना है, उसका डोज लिखना है. ठीक है, तो अगर इंटेस्टिनल एंटीस्पाज्मोटिक आएगा जो आपको डाइसाइक्लोमिन के बारे में जानना होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ प्रिस्क्रिप्शंस आपके लिए नया भी होगा तो बस इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ नो फिक्स सिलेबस, राइट. और जो कॉमन होगा वही पूछा जाएगा. एकदम हटके नया चीज़ जो है एकदम कभी मिलेगा ही नहीं मार्केट में, उस तरह की चीज़ आपको नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटेस्टिनल एंटीस्पाज्मोटिक. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डाइसाइक्लोमिन. ओके, अगेन एंटीएमेटिक ड्रग्स में आपका आ जाएगा क्या? एंटीएमेटिक में आ जाएगा ऑन्डेनसेट्रॉन. ऑन्डेनसेट्रॉन जो हो गया वो 4 milligram माउथ डिजोल्विंग टैबलेट के फॉर्म में आता है ऑन्डेनसेट्रॉन, और 1 tablet BD कर सकते हैं या SOS कर सकते हैं एंटीएमेटिक के रूप में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर यहाँ पे हम लोग का आता है मेटोक्लोप्रामाइड. मेटोक्लोप्रामाइड अगेन ये ऑन्डेनसेट्रॉन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और मेटोक्लोप्रामाइड क्या है? ये 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, 5-HT4 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना. तो ये आपका पूरा मेटोक्लोप्रामाइड एक साथ काम करता है. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटीएमेटिक, है ना. परगेटिव में बिसाकोडाइल 5 milligram 2 tablet एट बेड टाइम SOS. जब कॉन्स्टिपेशन जैसे लगेगा तो परगेटिव को यूज़ करते हैं. बिसाकोडाइल हो गया तो वो क्या करेंगे 5 milligram. अगर ये सिरप के फॉर्म में होगा तो हम लोग बोलेंगे पहला दिन 2 TSF खा के आप देखो. अगर क्लियर हो जाता है
तो बस रोक देना, फिर SOS कि जब जरूरत पड़ेगा तब, है ना। एंटी रूमेटिक क्या हो गया, एस्पिरिन। नाउ दिस एस्पिरिन एज एन एंटी रूमेटिक वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एस्पिरिन नहीं, बेंजाथिन पेनिसिलिन भी हम लोग एंटी रूमेटिक ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। एस्पिरिन 3 टैबलेट टू बी टेकन 4 आवर्ली आफ्टर फूड, ठीक है। और बेंजाथिन पेनिसिलिन जो होता है उसका इंजेक्शन 1.2 मिलियन यूनिट्स रहता है, उसको IM दिया जाता है बस एक बार, है ना। तो ये आपका एंटी रूमेटिक ड्रग में दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं, एस्पिरिन प्लस बेंजाथिन पेनिसिलिन। गाउट में एक्यूट गाउट होगा तो कॉल्चिसिन देंगे, 0.5 मिलीग्राम का आता है, 2 टैबलेट इमीडिएटली हम लोग देते हैं, खा लो दर्द कम हो जाएगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में कॉल्चिसिन देते हैं, क्रॉनिक में एलोप्यूरिनॉल देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है ना। अगर कोई बच्चा गाउट में अगर कोई पैरासीटामोल भी लिखता है और डिफेंड कर सकता है कि सर हम पेन किलर के रूप में हम इसको दे रहे थे, ठीक है, पेन किलर रूप में पैरासीटामोल दे रहे हैं या एसिक्लोफेनाक दे रहे हैं, ठीक है, तो यू हैव टू डिफेंड व्हाट यू राइट इन द ड्रग। हम लोग ये नहीं चाहते कि तुम लोग एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखो, हम ये चाहते हैं कि यू राइट द बेस्ट पॉसिबल आंसर जो तुमको पता है ना, एंड यू डिफेंड इट। अब मान लो एंटीमेटिक ड्रग का हम नाम बोले कि भाई एंटीमेटिक ड्रग का नाम लिखो, ठीक है, और तुम लिख दिया सिस्प्लेटिन जो कि उल्टी करवाता है पूरा, तो ये मतलब ब्लंडर नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर आस्क्ड समथिंग आप उसी की जस्ट अगेंस्ट वाला चीज़ बता दिए, ठीक है, तो ऐसा मत करना। एंटी कन्वर्जेंट में क्या है, डायजेपाम का इंजेक्शन, ठीक है, 1 एम्प्यूल में 10 मिलीग्राम रहता है, कोई नहीं तुमसे पूछेगा, बस याद रखना डायजेपाम का IV स्लो दिया जाता है। एंटी कन्वर्जेंट है, इमरजेंसी है, जब भी इमरजेंसी रहेगा टैबलेट फॉर्म में, रेक्टल फॉर्म में, वो सब नहीं दे के हम लोग IV फॉर्म में देते हैं। और कोई भी दवाई रहता है अगर कोई पेशेंट छटपटा रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग स्लोली देते हैं ताकि उसका मूवमेंट के चलते हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। और कुछ दवाइयाँ होती भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे देते हैं, ठीक है। ग्रैंड मैल एपिलेप्सी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड मैल एपिलेप्सी, उसमें फेनेटोइन 100 मिलीग्राम टैबलेट को 3 बार करके देते हैं 7 दिन के लिए, जस्ट टू बी श्योर कि वो एपिलेप्सी दोबारा ना हो, ठीक है। बच्चों में फेब्राइल कन्वर्जन अगर चिल्ड्रेन अगर हो रहा है तो बच्चे लोग जो होते हैं उन लोग में ऐसे भी वेन खोजना बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग रेक्टल रूट को प्रेफर करते हैं। 0.2 to 0.4 मिलीग्राम पर kg के फॉर्म में देते हैं डायजेपाम, ठीक है। तो डायजेपाम को हम लोग रेक्टल रूट से देते हैं बच्चे लोग में, फेब्राइल कन्वर्जेंस इन चिल्ड्रन। अक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया अगर कहीं लिखा रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन अगर आगे अक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया में क्या करोगे, तो वो क्लोरोक्विन हम लोग देते हैं 250 मिलीग्राम। ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोक्विन देते हैं, कैसे देते हैं ये भी पता होना चाहिए। 4 टैबलेट स्टैट हम लोग देंगे, मतलब 1000 मिलीग्राम जो है हम स्टैट देंगे 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम स्टैट देने के बाद फॉलोड बाय 4 टैबलेट आफ्टर 24 आवर्स एंड 2 टैबलेट्स आफ्टर 48 आवर्स, ठीक है। तो मलेरिया को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 48 आवर में कम से कम 1 ग्राम स्टैट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 0.5 ग्राम 24 आवर्स में देंगे, और 1 ग्राम 24 आवर्स में देंगे और 0.5 ग्राम 48 आवर्स में देंगे, ठीक है। इस तरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो मलेरिया तो कॉमन है, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो एकदम पेशेंट मिलेगा तुमको, तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट आएगा और बोलेगा नहीं सर हमको मलेरिया हो गया, तो सीधा आर्टिसोनेट और उस सब के बारे में नहीं सोच। सबसे पहले जो बेसिक मलेरिया का सिम्टम में हम लोग जो पता नहीं है कि वाइवेक्स है कि फैल्सिरम क्या है, तो क्लोरोक्विन ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमोइबियासिस या अमोइबिक डिसेंट्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम हर साल क्वेश्चन आता है। बच्चे लोग फंसते कहाँ पे, अमोइबिक डिसेंट्री लिखा रहेगा या बैसिलरी डिसेंट्री लिखा रहेगा, बच्चे लोग को समझ में नहीं आ रहा है भाई अमोइबिक डिसेंट्री है, डिसेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोइबा से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम 1 टैबलेट 3 बार करके TDS आफ्टर फूड फॉर 7 डेज, 1 सप्ताह के लिए 1 टैबलेट 3 बार करके खिलाएंगे, तब जाके ये खत्म होगा पूरा अमोइबिक डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री में हम कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बट यहाँ पे हमको स्पेसिफिक रहना होगा, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल देंगे आप, है ना, यहाँ एल्बेंडाजोल नहीं लिखना है, मेबेंडाजोल नहीं लिखना है, मेट्रोनिडाजोल लिखना है ना, ठीक है। कालाजार, देखो कालाजार भी बहुत टिपिकल है, कालाजार भी
इंडियन हमारे सब कॉन्टिनेंट जो है तुम्हारा जो बिहार प्लेट्यू में आ गए, हमारे झारखंड में भी तुम्हारा कालाजार के केसेस मिलते हैं, है ना, दुमका एरिया वो सब ऊपर में, वेस्ट बंगाल में मिलता है। बिहार इज़ द फेमस फॉर कालाजार, है ना। तो पीएसएम में तुम लोग और डिटेल में पढ़ोगे, क्या क्या दवाइयाँ आ गई है उसके लिए, ये सब पढ़ोगे, ठीक है। आज के डेट में तो हम लोग लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी यूज़ करते हैं, बट अगर एग्जाम में अगर बाई चांस आता है तो तुमको एंटीमोनी कंपाउंड्स के बारे में लिखना है, एंटीमोनियल कंपाउंड्स के बारे में। सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट इंजेक्शन हम लोग देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम, मतलब ये नाम तुमको जानना होगा, क्योंकि 30 ml वायल में वो इंजेक्शन रहता है जिसमें 100 मिलीग्राम एंटीमोनी रहता है, और 6 ml उसी का लेके IV चलाएंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स डेली फॉर 20 डेज, तब जाके कालाजार ख़त्म होगा। नहीं तो कालाजार से आदमी मर जाता है, एकदम इतना ज़्यादा सीरियस है ना। तो इसको जानना होगा। लेकिन आजकल अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी है, पता होना चाहिए व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड इन कालाजार, है ना। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, उसका लाइपोसोमल फॉर्म उसको दिया जाता है, ठीक है। नाम लिखने से भी चलेगा, एटलीस्ट नो दैट दीज ड्रग्स आर गिवन, समथिंग कॉल्ड एंटीमोनी, है ना, एंटीमोनियल कंपाउंड्स गिवन इन कालाजार, ठीक है। एंटी टीबी में देखो साइड इफेक्ट सब लोग पढ़ लेते हैं, थ्योरी में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट यहाँ पे आपको एंटी टीबी रेजिमेन अगर मान लो लिखने मिला कोई प्रिस्क्रिप्शन में, तो आपको एकदम क्लियर कट पता है कि ये तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, ये तो हमको पता है ये 4 का है, ठीक है। बट उसके साथ में पायरिडॉक्सिन 10 मिलीग्राम का देते हैं, ये देना मत भूल जाना, ठीक है। और बाकी जो ड्रग्स जैसे नाम लिखे, चारों ड्रग जो लिखी जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में, उसका डोज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डोज इंपॉर्टेंट है, और कितना दिन के लिए देना होगा वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीएसएम में भी आएगा, मेडिसिन में भी आएगा, और यहाँ भी आएगा। ये भी तुमको बताना होगा कि एंटी टीबी मेडिसिन कितना दिन के लिए देंगे। क्वेश्चन वहीं पे तुमको वाइवा पूछा जाएगा, बताओ क्या जानते हो टीबी। टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है, बिना टीबी के बारे पढ़े एग्जाम देने नहीं आने की जरूरत है, ठीक है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटी लेप्रोसी मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी जो है, एंटी लेप्रोसी में क्या क्या ड्रग है, इसका मतलब खेल क्या है ना, कि आपको जानना होगा कि 3 को दवाई दी जाती है, तीनों को देने का तरीका अलग अलग है। एक तो रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन वही टीबी वाला भाई, ठीक है। यहाँ रिफाम्पिसिन 450 मिलीग्राम का दिया जाता था, यहाँ पे रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम का दिया जाता है वंस अ मंथ। डैप्सोन जो होता है 100 मिलीग्राम करके चलता है डेली, ठीक है। क्लोफाजिमिन जो होता है, ये क्या तरीका है इसका कि 50 मिलीग्राम वंस डेली करके डेली चलेगा, लेकिन हर महीना में जब हम रिफाम्पिसिन देंगे उसके साथ में 3 कैप्सूल ऑफ 100 मिलीग्राम क्लोफाजिमिन को हर महीना दिया जाता है रिफाम्पिसिन के साथ में। तो ये एक टिपिकल वे ऑफ गिविंग फॉर मल्टीबैसिलर लेप्रोसी है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो टिपिकल है, जो टिपिकल है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल है तो सब बच्चे जानता है, कोई भी एंटीबायोटिक लिख देगा, टाइफाइड पूछेगा सब लिख देगा, यूटीआई पूछेगा सब लिख देगा, सबको पता है। जिथ्रोमाइसिन लिख देंगे 500 मिलीग्राम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए, तो चलो टीचर मान लिया। बट थोड़ा सा क्वेश्चन हट के भी रह सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में ये सब जानना जरूरी है, जो थोड़ा सा हट के है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा तुमको मतलब उस तरह का सिंपल क्वेश्चन नहीं ना मिलेगा कि टाइफाइड ही रहेगा और यूटीआई का ही पेशेंट मिलेगा। अचानक से आ गया लेप्रोसी का पेशेंट, अब तुम बोलेगा जा साला कहा था, हमको कुछ पता ही नहीं है, तो कोई पढ़ाया ही नहीं हम लोग को, ठीक है। अब आता है मिक्स्ड वॉर्म इन्फेक्शन। बच्चा बोलेगा कि सादा सादा करके पिल्लू निकलता है, पैखाना की जगह में नोचनी आता है, बार बार नोचाता है और हाथ में पिल्लू जैसे लगता है, सादा सादा आ जाता है, तो समझ जाना इन्फेक्शन है। बच्चा दांत किटकिटाएगा, है ना, दांत करके आवाज़ करेगा, ठीक है। तो माँ बोलेगी आके कि बच्चा का ना वो पिल्लू आ रहा है, मुंह से भी कभी कभी लगता है कि कुछ पिल्लू जैसे कुछ निकल रहा है, इस तरह से इतना ज़्यादा इन्फेक्शन पकड़ लेता है। कुछ नहीं करना है, मेबेंडाजोल देना, या तो डिवॉर्मिंग कराना है। ऑब्वियसली डिवॉर्मिंग में क्या आता है, एल्बेंडाजोल आएगा या तो मेबेंडाजोल आएगा। एल्बेंडाजोल जो है वो पुराना ड्रग हो गया, मतलब थोड़ा सा पहले से यूज़ कर रहे थे हम लोग, तो वो 400 मिलीग्राम का होता है। एगो आज खाना है, एगो 7 दिन के बाद खाना है, ठीक है। हम लोग बहुत सारा ऐसा बीमारी आता है जिसमें हम लोग महीना तक हम लोग एल्बेंडाजोल चलाते हैं, ठीक है, जब न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होगा या कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा। बट अभी क्या जानना है कि 2 दिन के लिए देते हैं। यहाँ मेबेंडाजोल जो होगा, मेबेंडाजोल 100 मिलीग्राम का आता है, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, सुबह शाम करके 3 दिन तक खाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इसका साइड इफेक्ट कम आएगा, है ना। चलो ये चीज़ हो गया। फाइलेरिया में देखो क्या है, ये दवाई का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, डाइथाइल कार्बामाजिन। अब होता क्या है, बच्चे लोग यहाँ पे
कार्बामाजेपिन लिख देता है। माजेपिन करके मतलब जेपिन, दीज आर वो दवाई को यहाँ पे क्यों मिला रहे हो, ठीक है। तो ये जो DEC जो है ये आपका फाइलेरियासिस के लिए यूज़ किया जाता है। एक टैबलेट 100 मिलीग्राम का आता है, 3 बार करके खाना है फॉर 21 दिन। फाइलेरिया का यही ट्रीटमेंट है। हाथी पाव का ट्रीटमेंट में हम लोग DEC देते हैं, ठीक है। सॉल्ट का नाम है साइट्रेट। याद नहीं भी रहेगा, डोज भी याद नहीं रहेगा, दवाई का नाम सही लिखोगे तुमको प्रिस्क्रिप्शन में ज़्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन जो प्रिकॉशंस है और जो कम्युनिकेशन है टू द पेशेंट, तो जब तक बीमारी के बारे में नहीं जानोगे तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो ये हम लोग सुनना चाहेंगे कि हाउ विल कम्युनिकेट टू द पेशेंट, है ना। आ गया बैसिलरी डिसेंट्री। हम अभी डिसेंट्री अभी बताए थे, मेट्रोनिडाजोल दिए थे। अब बैसिलरी डिसेंट्री आ गया, ठीक है। यहाँ पे या तो हम लोग कोट ट्राइमॉक्साजोल दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे ऑर्निडाजोल दे सकते हैं, ऑर्निडाजोल दे सकते हैं, है ना, ओफ्लॉक्सिसिन के साथ। ये भी दे सकते हैं 200 दोनों 200 करके 1 टैब ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज, ये दे सकते हैं। या फिर कोट्राइमॉक्साजोल का जो रेशियो होता है वो 5:1 रेशियो में आता है। 400 मिलीग्राम सल्फामिथॉक्साजोल और 80 मिलीग्राम ट्राइमिथोप्रिन, 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज। ये होता है तुम्हारा ट्रीटमेंट फॉर बैसिलरी डिसेंट्री। याद रखना, आजकल जितना भी मतलब आ रहा है, इवन UTI टाइफाइड के केसेस में भी हम लोग जो रेजिस्टेंट वाले आ जाते हैं उसमें हम लोग कोट्राइमॉक्साजोल को यूज़ करते हैं। इसीलिए ये दवाई का कंपोजिशन वाइवा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। सिफिलिस, पिछले एग्जाम में बहुत लोग फंस गया था। सिफिलिस का हम लोग पूछ लिए थे कि भाई सिफिलिस का प्रिस्क्रिप्शन लिखो, किसको समझ में ही नहीं आ रहा था करना क्या है इसमें। इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन इज गिवन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप नंबर क्वेश्चन है ये सब। इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन 1 वायल कंटेन 2.4 मिलियन यूनिट्स। एंटी रूमेटिक वाला में 1.2 मिलियन यूनिट्स था, इसमें 2.4 मिलियन यूनिट्स को बेंजाथिन पेनिसिलिन को सिफिलिस में दिया जाता है। इट इज डिजॉल्व्ड इन 3 ml वाटर, हाफ क्वांटिटी इंजेक्शन गिवन डीप इंट्रामस्कुलरली इन ईच बटक, ठीक है। दोनों बटक में हम लोग आधा आधा मतलब उसको देते हैं, ठीक है। बट इसको पहले पाउडर के फॉर्म में रहता है, इसको डिजॉल्व करेंगे 3 ml वाटर में, और उसके बाद हम लोग इंजेक्शन को आधा इसमें दिए, आधा दूसरे बम में दिए, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्यूट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, इट इज द गोनोरिया। तो गोनोरिया सिफिलिस लास्ट ईयर भी एग्जाम में आ चुका था, ठीक है, इस साल भी आने का प्रोबेबिलिटी उसका हाई है, ठीक है, बिकॉज दीज आर STDs। STD का प्रिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट जानना होगा तुम लोग को, ठीक है। तो गोनोरिया में बेसिकली क्या है, कैप्सूल एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम 1 कैप्सूल 1 OD फॉर स्टैट दे देंगे, और प्रोबेनिसिड जो होता है 1 आवर बिफोर द एमॉक्सिसिलिन ये दे सकते हैं। या फिर हम लोग सीधा एमॉक्सिक्लैब दे सकते हैं, ठीक है, क्लेवम मतलब एमॉक्सिक्लैब दे सकते हैं 625, है ना। तो वो भी एक मतलब ऑल्टरनेटिव है। या फिर तुम लोग उसको इसके साथ में ये भी दे सकते हो, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हो, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन इज अनदर गुड चॉइस, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज, ठीक है। कोई भी जैसे लोअर यूरेथ्रा में UTI होगा या कुछ में, तो डॉक्सीसाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर में सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 500 मिलीग्राम 1 टैबलेट BD फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह। हम लोग 10 दिन चलाते हैं, बट आइडियली 14 डेज देना चाहिए, है ना, ठीक है। टाइफाइड फीवर के लिए ये हो गया। स्टेप लैडर फीवर अगर नाम कहीं लिखा रहेगा, इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में 4 तरह का होता है, 4 तरह का फीवर होता है। जो थर्ड टर्म होता है वो स्टेप लैडर टाइप का आता है। स्टेप लैडर मतलब धीरे धीरे फीवर बढ़ेगा शाम के टाइम में, है ना। UTI में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नॉरफ्लॉक्सिसिन 400 मिलीग्राम दे सकते हैं सुबह शाम करके फॉर 14 डेज, ठीक है। या तुम दे सकते हो नाइट्रोफुरेंटॉइन, जो तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस है। नाइट्रोफुरेंटॉइन जो है वो 100 मिलीग्राम का आता है, ठीक है। तुम सुबह शाम दे सकते हो फॉर 10 डेज, सुबह शाम दे सकते हो। नाइट्रोफुरेंटॉइन या नॉरफ्लॉक्सिसिन दोनों UTI में दे सकते हैं, बट अगेन तुमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि हम तो दे सकते थे, बट बेस्ड ऑन द कल्चर रिपोर्ट।
बेस्ड ऑन द यूरिन कल्चर रिपोर्ट हम लोग दवाई देंगे। ये अगर मेंशन करोगे टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर मैं एग्जामिनर हो तो, बच्चा को पता है कि यूटीआई में हम लोग कल्चर करवाते हैं यूरिन का, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर ये बहुत कॉमन है, रेड आई जो है ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो रेड आई इज एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, और इसका आई ड्रॉप इस बार के एग्ज़ाम के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। एक आई ड्रॉप का क्वेश्चन अगर 2 प्रिस्क्रिप्शन आएगा तो एक आई ड्रॉप तुम लोग का उसमें से आ सकता है, ठीक है। तो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द आई ड्रॉप्स ऑल्सो। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप देते हैं हम लोग 1 ड्रॉप बोथ आइज। क्यों भाई बोथ आइज? क्योंकि एक में इन्फेक्शन है तो दूसरा में भी इन्फेक्शन पकड़ने का चांस रहता है, 3 बार करके देना होता है, ठीक है। और रात को सोने समय यही सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ऑइंटमेंट जो होता है उसको इनर जो एस्पेक्ट ऑफ द लोअर आईलिड है उसको रात में सोने समय लगा के सोना होता है, ठीक है। तो दिन में तुम अगर नीचे में लगा दोगे ऑइंटमेंट तो तुमको देखने में दिक्कत होगा, इसलिए रात को सोने समय वो ऑइंटमेंट लगाना होता है और 3 बार करके वो ड्रॉप को लगाना होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। ये इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही रेड आई अगर पूरा फैल जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप मार्केट में मिलना भी कम हो जाता है, ठीक है। तो लंबा सा ट्यूब रहता है, आई थिंक यू हैव सीन मोस्ट ऑफ यू, अगर नहीं देखे हो तो मतलब जस्ट गो एंड सी द सिप्रोफ्लॉक्सासिन ईयर आई ड्रॉप। आई ड्रॉप में कभी कभी लिखा रहता है ये आई एंड ईयर ड्रॉप बोथ, आई एंड ईयर ड्रॉप बोथ, मतलब कान के इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं, आँख में भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो इसी तरह से जैसे आई में लगाने के लिए एक और आता है, जैसे नियोमाइसिन का जो ऑइंटमेंट आता है उसको भी आँख में लगाया जा सकता है, वो उसमें भी लिखा रहता है फॉर लोकल यूज़ एंड फॉर आई यूज़ ऑल्सो। तो आई में लोअर लिड में लगा के या कहीं पे भी ला के सो जाना, तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा रहता है तो धीरे 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 करके जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब नाउ इट इज़ द अगेन अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्नेक बाइट का पूरा ट्रीटमेंट को तुमको एकदम टिप ऑफ द टंग रखना है, क्योंकि आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो, स्नेक बाइट का पेशेंट आना ही आना है। अगर एक प्रिस्क्रिप्शन आपको स्नेक बाइट का दिया जाएगा तो आपको एकदम जो हम लिखे वही आपको लिखना है। पॉलीवेलम एंटी स्नेक वेनम सीरम, ठीक है, उसका वाइल लेना है, 10-20 को वाइल उसको बोल देना तैयार करके रखने, क्योंकि बार बार देना होता है जब तक पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज तैयार करके रखना है, वाटर इंजेक्शन के लिए तैयार करके रखना है। पॉलीवेलेंट वैक्सीन जो होता है, वेनम जो होता है, उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ईच वायल इज टू बी डिजोल्व्ड विथ 10 ml ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन सेपरेटली, ठीक है। नाउ 20 ml रिकंस्टिट्यूटेड एंटी वेनम is diluted in 500 ml of 5% dextrose saline and administered IV as rapidly as tolerated over the 2 hours। 2 घंटे में हम लोग को ये 500 ml जो 5% डेक्सट्रोज के साथ में जो एंटी वेनम है उसको हमको चला देना है। पेशेंट अगर ठीक नहीं होता है हम लोग उसको रिपीट करेंगे हर 2 घंटा में, जब तक वो होश में नहीं आता है, जब तक लगेगा कि उसका मतलब पेशेंट। तो इसलिए हम लोग स्नेक बाइट में मजाक नहीं करते। स्नेक बाइट वाला कोई भी पेशेंट आएगा उसको आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखने आपको आना चाहिए। सिस्टर को भी पता रहता है, लेकिन जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक सिस्टर देगी नहीं, ठीक है। तो यू आर द डॉक्टर, तुमको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना यू ऑल नो, टैब ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट 0.5 मिलीग्राम 1 टैबलेट सबलिंगुअली दे सकते हैं, या तो जब जरूरत पड़ेगा तब देंगे, है ना। टंग के नीचे में बस रखना होता है, दर्द खत्म हो गया फेंक देना होता है, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड फॉर अ केस ऑफ कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, तो डिजॉक्सिन देते हैं 0.25 मिलीग्राम। 4 टैबलेट को स्टैट दिया जाता है, एक बार में 4 मतलब 1 ग्राम को दिया जाता है, 1 मिलीग्राम दिया जाता है, फॉलोड बाय 1 टैबलेट डेली दिया जाता है कार्डियक फेलियर में, ठीक है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के नए बहुत सारे ड्रग्स आ गए हैं, डिजॉक्सिन हार्डली आजकल यूज़ करते हैं हम लोग। एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया माइग्रेन, ठीक है। जो टिपिकल थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, उसका दवाई भी तुमको पता होना चाहिए कि भाई यही दवाई दिया जाता है। माइग्रेन का 2 दवाई हम बताएंगे, जो तुमको याद रहेगा वही याद रखना, ठीक है। देने का तरीका क्या है, 1 टैब को तुरंत खा लेने का और 1 दवाई को 2 घंटा के बाद खाने का, अगर दर्द ठीक नहीं होता है तो।
सुमाट्रिप्टन याद रहेगा, सुमाट्रिप्टन का डोज याद रखना 100 का आधा 50 होता है, ठीक है। तो एक दवाई तुरंत खाए, एक दवाई बाद में खाए, तो 1+1 होता है ना, जैसे 2 हो गया डिवाइडेड बाय 100 50 हो गया। तो ऐसे याद रखना सुमाट्रिप्टन का 50 होता है, बस ये याद रखना 50 मिलीग्राम का सुमाट्रिप्टन होता है, एक टैबलेट तुरंत खाना है। तो अगर एग्जाम में आएगा कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। और क्या आता है, अर्गोमेट्रिन और कैफीन का कॉम्बिनेशन में, अर्गोमेट्रिन और कैफीन का कॉम्बिनेशन को भी हम लोग माइग्रेन में हम लोग देते हैं। तो देते कैसे है, एक टैबलेट तुरंत दे दिए और एक टैबलेट 2 घंटा के बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। उसके बाद रिंगवॉर्म पहले होता था, रिंगवॉर्म का में हम लोग मिकोनाजोल का ऑइंटमेंट 2% देते थे एक ट्यूब में, जिसमें 15 ग्राम रहता है, टू बी अप्लाइड ऑन ऑल द अफेक्टेड पार्ट्स ट्वाइस डेली फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूटीआई हुआ या टाइफाइड हुआ या कोई भी अगर नॉर्मल फीवर भी हो रहा है, ठीक है, या फिर वेट कफ हो रहा है, वेट कफ जिसमें निमोनिया होने का चांस है, ठीक है। तो अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन से एंटीबायोटिक्स देना है, कैसे डोज में देना है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम ना बस आप लोग याद रखना। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इन जनरल भी आप प्रैक्टिस में जब इसको यूज़ करोगे, तो अगर एजिथ्रोमाइसिन देना है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन देना है, रिमेंबर all the names in the prescription, all the drugs should be in capital letters. Tablet azithromycin 500 milligram, 1 tablet once daily, OD कर सकते हो या फिर लिख सकते हो once daily। एजिथ्रोमाइसिन का डोज है 5 days। उसी तरह से अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन हुआ, क्लैरिथ्रोमाइसिन तो ये हो जाएगा 300 मिलीग्राम once daily for 5 days। अगर रॉक्सीथ्रोमाइसिन हुआ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मिनट, क्लैरिथ्रोमाइसिन भी तुम्हारा होता है 500 मिलीग्राम, राइट। रॉक्सीथ्रोमाइसिन 300 मिलीग्राम once daily for 5 days, ठीक है। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन भी होता है, या तो इसको हम 500 मिलीग्राम ओडी दे सकते हैं, या फिर किसी को पेट में बार बार दिक्कत हो रहा है तो 250 ग्राम बीडी दे सकते हैं। इसको भी हम लोग 150 मिलीग्राम बीडी दे सकते हैं रॉक्सीथ्रोमाइसिन को, ठीक है। मतलब सुबह शाम करके भी दे सकते हैं और एक बार में ही दे सकते हैं, दोनों में हम लोग ओके जिसको। लेकिन इन लोगों का साइड इफेक्ट क्या है, गैस्ट्रिक अपसेट, पेट में गैस बनेगा, पेट दर्द कर सकता है, ठीक है। तो बहुत आराम से देना है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक दवाइयाँ हैं, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप का दवाई हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो है टैबलेट सेफिक्सिम, टैबलेट सेफिक्सिम या इंजेक्शन जोन में होता है सेफ्ट्रियाक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्रियाक्सोन। तो सेफिक्सिम जो होता है वो 200 मिलीग्राम का होता है, इंजेक्टेबल वाला छोड़ दो, बट ये वार्ड में यही सब यूज़ करते हैं ना। टैब सेफिक्सिम जो होता है 200 मिलीग्राम 1 टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर 5 days। अगर फीवर नहीं उतर रहा है तो हम क्या करेंगे, टैब सेफिक्सिम के साथ में ओफ्लॉक्सासिन को ऐड कर देंगे, दोनों 200 का होता है, ठीक है। अगेन 1 टैब ट्वाइस डेली फॉर 5 days, ठीक है। याद रखना ये ओडी डोज था, सिंगल एक बार खाने का दिए थे ना, और ये सुबह शाम खाने का था, ये सुबह शाम खाने का ये वाला दवाई का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बेसिक इसको हमेशा याद रखना। तीसरा, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम उस तरह का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एमॉक्सीक्लैब टाइप का जो आता है ना, एमॉक्सिसिलिन और क्लेबुलिनिक एसिड, ठीक है। तो ये 500 हो जाएगा और ये 125 आ जाएगा, तो ये 625 आ जाएगा मिलीग्राम, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर 5 days, ठीक है। अभी कहीं हमको लगेगा कि एनएरोबिक बैक्टीरिया भी होगा, एनएरोबिक तुम्हारा मतलब इम्पैक्ट भी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टैबलेट मेट्रोनिडाजोल को ऐड कर देंगे, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट 400 मिलीग्राम 1 टैबलेट TDS या BD फॉर 5 days, उसके साथ में ऐड कर दिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लाइक रिमेंबर, ओके।
तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम इतना तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यूटीआई का ट्रीटमेंट, टाइफाइड का ट्रीटमेंट, कोई भी फीवर का ट्रीटमेंट, कोई भी निमोनिया का ट्रीटमेंट, आग बंद करके ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, यार तुमको कम से कम ना ये मिल जाएगा। ये तो चलो हट जा, ये थोड़ा सा हट के हो गया, ठीक है, लेकिन कहीं पे तुमको एमॉक्सिक्लैब हो गया, सेफिक्सिम हो गया, या फिर प्लेन सेफिक्सिम हो गया, या फिर सेफिक्सिम के साथ में ओफ्लॉक्सासिन हो गया, ठीक है, या फिर एजिथ्रोमाइसिन या कोई भी मैक्रोलाइड हो गया, तो पता होना चाहिए कि भाई 3 दवाई जो है ना हम लोग वो हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमनली हम लोग यही दवाई मार्केट में यूज़ करते हैं। एंड आई बिलीव आपको क्वेश्चन पे अगर ये बनाना भी पड़े तो तुमको अगर पी ड्रग भी लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, तो पी ड्रग में कम से कम ये सारी दवाइयाँ को लिख के उसका साइड इफ़ेक्ट और उसका क्या एडवांटेज है उसको फोकस में करके तुम पी ड्रग बना सकते हो। सो अगेन अ प्रेस्क्रिप्शन कैन बी कम एज अ पी ड्रग, जिसमें तुमको उसके ऑल्टरनेटिव दवाई के बारे में भी सोचना होगा, और जो दवाई तुम्हारे दिमाग में उसके आगे और क्या क्या दवाई हम ऐड कर सकते हैं वो चीज़ को हम लोग दिमाग में रख के पढ़ना होगा, ठीक है। सो पी ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन में 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स है। उसमें क्वेश्चन जो रहेंगे वो थोड़ा सा यूनिक भी रह सकते हैं, डरना नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये प्रैक्टिस ग्राउंड है। मेन एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए हमको तैयार करना है, ठीक है, और लाइफ में भी जिस तरह के तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं डेली के बेसिस पे, उसके लिए तुमको तैयार होना होगा, इसलिए सब पढ़ना है, ठीक है। तो पी ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारा 20 मार्क्स के लिए ये कम से कम पढ़ के जाना, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारे लॉग बुक और उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे पी ड्रग का मैंने 8 लिखवा दिया था क्वेश्चन के साथ में, और प्रिस्क्रिप्शन का तुम्हारा कम से कम 10 से 15 लिखवा दिया था, जैसे अनीमिया हो गया, ये सब जो लिस्ट दे दिया था उसको तुम लोग अच्छे से कर लेना। ओके, चलो बढ़िया। प्रैक्टिकल के समय हम लोग फिर डिस्कस करते हैं।